Good evening, everybody. Hello. सो गए क्या? Then how is the जोश? आप फिर जोर से बोलिए. अभी तो एग्जाम देना बाकी है आप लोगों का. अभी से इतना डिप्रेशन में मत चले जाइए. Just to help you, we have brought the subject experts. Correct? So in the series of Fight the Fear and Be the Champion, consists of special career counseling and exam motivation sessions for the 12th grade, 8th to 12th grade students. Okay, you are welcome to the second session of the series, which has focused on overcoming exam anxiety. Correct? Especially for the 11th and 12th grade students. Inside PCTC is an institution, a team of counseling psychologists and trainers offering a wide range of counseling services, corporate training programs, students programs and internship for undergraduate and postgraduate psychology students. I will introduce both the speakers at a time. Correct? Was Mrs. Vinita Kanare. She is a counseling psychologist, certified marriage counselor and corporate trainer with over 20 years of experience in mental health and professional development. She is the founder of Insight Psychological Counseling and Therapy Center, managing a team of psychologists and a soft skill trainer. And another speaker is Mrs. Khushbu Mangrolia. She is also a counseling psychologist, certified art and mandala therapist with 5 years of experience in supporting mental health and emotional well-beings. She specializes in the parent counseling and guiding young adults through life's challenges. Khushbu Mangrolia madam uses creative and therapeutic technique to foster the healing and personal growth. Correct? So now I will hand over the stage to them and they will come give you the tips as well as whatever they have prepared for you, and then we will have a question answer session also. Correct? So before I hand over on behalf of the AMA, I would like to felicitate them with a small token. Hello. Good evening. Yes. आप आके आ जाइए चाहिए तो. More comfortable? Comfortable there? Okay, good. So, सबके एग्ज़ाम्स आर अराउंड और एटमॉस्फेयर घर का बहुत चेंज लग रहा होगा. डिसिप्लिन बच्चों के साथ साथ पूरे घर में भी वातावरण चेंज होने लगा है, राइट? सो प्रेशर इज़ बिल्डिंग. सो वी आर हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन ऐड टू इंक्रीज योर स्टडीज़. पढ़ाई हम और अच्छे से कैसे कर पाएँ और ये जो फियर और जो डर लग रहा है इसको हम कैसे कॉम्बैट करें. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सो ये आज हम जो 1.5 घंटा हैं यहाँ पे हम कैसे एग्ज़ाम्स जो यहाँ आ गए हैं उससे वातावरण में जो भी बदलाव आ रहा है उसको कैसे समझें. और आज हम यहाँ पे ये भी सीखने वाले हैं कि इसका इफ़ेक्ट मेंटल हेल्थ पे या हमारे सोचने पे कैसे पड़ रहा है, इसको हम कैसे डील करें. तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. कुछ नई नई टेक्निक्स भी हम सीखेंगे जो आपको काम आएंगी पढ़ाई के लिए भी और जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस समय भी. ठीक है? सो आई एम फाइंडिंग यू, आई एम एड्रेसिंग यू. हाँ, ओके, फाइन. सो जब हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वेदर कैसा हो रहा है, घर पे कैसा वेदर हो रहा है. आई विल कीप आस्किंग यू, राइट? कैसा लग रहा है घर में? शांत, ज़्यादा शांत हो गया है. ओके. कमरे का कैसा टेम्परेचर है? ओके. सो क्या घर में और आसपास भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो हम बहुत सारे बातचीत करते हैं फ्रेंड्स के साथ, वी कीप टॉकिंग टू देम, क्या उसमें कुछ चेंज हो गया है क्या? सो राइट. तो ये वेदर चेंज हो गया है ना. सो एवरीवेयर वेदर इज चेंज एंड लेट्स सी अ लिटिल थिंग. क्या हम लास्ट चैप्टर का डायग्राम पढ़ना भूल गई. मैं पक्का फेल हो जाऊंगी. These bloody toppers. Hey, best of luck, Pankaj. Best of luck. Present tense, simple present, present continuous, present perfect. एक और
ऑलराइट गाइस, क्या था? फर्स्ट चैप्टर मेरा, सेकंड इसका, थर्ड तेरा। ओए, chapter 3 I have prepared यार। क्या? अबे गधे, सेकंड इसका था। वो आज इंग्लिश है? आज तो सोशल साइंस था ना? सो हम यहाँ पे आज बात करने के लिए आए कि एंग्जाइटी या एंग्शियस हम क्यों हो जाते हैं, है ना? ऐसा क्या होता है कि वी फील एंग्शियस अबाउट, ओके? सो ऐसा लगता है कि हम अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है तभी भी ऐसा फील हो रहा है, फियर, तैयारी हो गई है तब भी, एंड तैयारी नहीं हुई है तब भी, है ना? तो तैयारी नहीं हुई है तब हम एंग्शियस फील कर रहे हैं, और अगर हो गई है तभी भी ऐसा फील कर रहे हैं, और क्या हम फैमिली प्रेशर भी फील कर रहे हैं? सो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके? एंड वेयर द आपके पीयर प्रेशर फील कर रहे हैं क्या? आपके आसपास फ्रेंड्स, उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, दे हैव कंप्लीटेड देयर रिविजन्स, बार बार वो कर पा रहे हैं, सो मेनी टाइम्स पीयर प्रेशर इज ऑल्सो कमिंग, राइट? सो इवन क्या हम डिफ़िकल्टी फाइंड कर रहे हैं टू स्टडी, पढ़ाई करने में, और यू आर स्लिपिंग योर टाइमिंग्स, टाइम लग रहा है कि आज इतना पढ़ना था, बट वी नॉट एबल टू कवर, राइट? तो ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले, विच इज़ मे बी क्रिएटिंग एंग्जाइटी और फियर, फाइन, ओके? सो इट इज़ क्रिएटिंग स्ट्रेस। सो डिस्ट्रैक्शन भी हमें स्ट्रेस क्रिएट करता है, क्योंकि हम देखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे बात करते हैं कि सब इतना प्रिपरेशन किया है, थ्रू आउट द ईयर वी हैव डन वेरी वेल, बट व्हाट इज़ इट विच इज़ नॉट हेल्पिंग अस टू डू लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में क्या चीज़ है जो हमें तकलीफ दे रही है? व्हाट इज़ इट? सो इट इज़ मोस्टली सब बच्चे कंप्लेंट्स करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, राइट? सो व्हाट इज़ इट? व्हाट डिस्ट्रैक्शन वी आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद? तो इट कम्स दैट सोशल मीडिया। कितनी बार ऐसा हो रहा है कि आप रोज़ बोलते हैं कि डाउनलोड को, मैंने उसको ऐप को डिलीट मार दिया, ऐप गॉन, बट आफ्टर ए फ्यू, कुछ दिन के बाद अगेन बोलता है नो आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स ऑन ऐप, आज मैं थोड़े दिनों के लिए लगा लेता हूँ, ऑन फिर से कर लेते हैं, राइट? देन स्टोरीज़, हमारे फ्रेंड्स की स्टोरीज़ भी बहुत सारी हमारे दिमाग में चल रही होती है ना, व्हाट दे आर हैपनिंग इन देयर लाइव्स, रिलेशनशिप, उसका गॉसिप, दैट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन, है ना? देन उसके बाद डे ड्रीमिंग, आपका एज के हिसाब से वी आर ऑलवेज, कितनी बार ऐसा होगा कि यू आर सेटिंग एंड यू आर ड्रीमिंग एंड बुक्स सामने खुली हैं, हम पढ़ रहे हैं, दैट स्टिल वी आर नॉट देयर, है ना? सो दिस इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रैक्शन वी आर स्ट्रगलिंग विद। एंड थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, क्योंकि आप बच्चे इस एज में हैं कि यू मे बी हैविंग स्मॉल छोटे छोटे क्रश हैं, थोड़े थोड़े रिलेशनशिप्स हैं, सो वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग देयर ऑल्सो, वी आर थिंकिंग ऑन दैट ऑल्दो वी आर स्टडिंग. So these are the distractions we are into it, okay, and which create stress. तो ये धीरे धीरे ये स्ट्रेस क्रिएट करता है. सो इट इज़ अ साइकिल. अब कौन सा साइकिल है ये? कि फीलिंग बोर्ड, कुछ टाइम के बाद लगता है कि कितनी बार पढ़ लिया है, रिविजन हो गया है ना, आई एम फीलिंग बोर. तो ये भी मैं ये बोर होता हूँ, बोर होती हूँ, और फिर प्रोक्रेस्टिनेट इज़ डिलिंग, नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना, मूड नहीं हो रहा है, सो बोर होते हैं, देन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन फ़ोन, जब डिपेंडेंसी फ़ोन पे बढ़ जाती है कि मैं, पेरेंट्स को लगता है कि हम पढ़ रहे हैं फ़ोन पे, लेकिन एक्चुअली में वी आर नॉट, मेनी अ टाइम्स वी आर नॉट इनटू the study or the content we want to, so we are more into phone. So dependency on phone increases, and excuses, हमारे excuses कैसे बढ़ते हैं? What are the excuses mostly we give? Can you give me one example? नहीं देती हूँ एक्सक्यूजेस, ओके. सो हम लोग कैसे एक्सक्यूजेस नॉर्मली लोगों के आ जाते हैं, बच्चों के, कि मैंने रात को तो बहुत लेट पढ़ लिया है, अभी आज मॉर्निंग में मैं नहीं उठ सकता हूँ, राइट? और फिर कि आप लोग घर में इतनी बातें करते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हो, राइट? आपके घर में इतने गेस्ट आ रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू. सो दीज आर द एक्सक्यूजेज विच इज़ अ साइकिल, जो इट्स टफ टू ब्रेक समटाइम्स. हमने थ्रू आउट ईयर बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बट लास्ट 1 मंथ जहाँ हमें बहुत सारा कॉन्सेंट्रेट करना है, बहुत सारी हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप ऑलमोस्ट 10% और 20% इंक्रीज कर सकते हैं इन लास्ट मोमेंट पढ़ाई. फाइन. सो विच इज़ डिस्टर्बिंग ना, समटाइम्स यू फील लाइक कि हम कर पाते हैं बट नहीं हो रहा है. सो इट्स अ साइकिल विच वी नीड टू ब्रेक, ओके. सो एक्सक्यूजेस जिससे हम बात कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस कौन से एक्सक्यूजेस हैं? इट्स सिंपल एग्जाम्पल्स लिए हैं, ज़रा देखते हैं कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, पेपर बहुत टफ आया था, मैंने तो पढ़ाई की थी, इट्स एन एक्सक्यूज. देन
फिर लुक एट दिस पीपल जो इंस्टाग्राम पे इतनी पढ़ाई है उसके बाद भी दिस पीपल आर रोज उनके नए नए पोजेज हैं, नए नए उनके फ्रेंड सर्कल के साथ डाल रहे हैं. सो दिस पीपल आर नॉट स्टार्टिंग. तो ये एक्सक्यूजेज हैं. एंड पढ़ना तो पर उससे पहले मेरी फेवरेट कोई मूवी देख लो या मेरा कोई वेब सीरीज़ है वो मैं पहले फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूँगी. तो ये भी बहुत बच्चे जो हैं एक्सक्यूज़ करते हैं. एंड डिफरेंट तरीके से हमारे एक्सक्यूजेस चलते हैं. फिर अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो इतना है, मेरी रिवीजन हो चुकी है, सो ये भी एक्सक्यूज़ चलता है. और प्री बोर्ड ही है, प्री बोर्ड में कोई बात नहीं, हम आगे तो कर ही लेंगे कवर. तो ये नॉर्मल बच्चे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, विच अगेन इट इज़ अ साइकिल जो हमें ब्रेक करना है. बिकॉज गेट बोर्ड, प्रोक्रेस्टिनेट एंड वी फील लाइक कि हमसे तो हो जाएगा. इट क्रिएट्स एन ओवर कॉन्फिडेंस. समटाइम्स वी नो दैट कि नहीं हो पा रहा है, बट वी कीप डूइंग दैट. ओके, सो दैट व्हाट कम्स. ऐसा करने से क्या हो रहा है? यस, क्योंकि अभी काफी लोग बच्चे हैं नहीं, इसको थोड़ा मतलब सर्कुलेट करें तो भी अच्छा है. तो मतलब वो अभी तो 5-6 दिन ही रहे, तो मतलब कल हो जाएगा. कल नहीं होगा. नहीं सर बोल रहे हैं जो वो आपको मिलेगा. बस उतना ही हो पाएगा. आप जी जी वो पॉसिबल नहीं होगा. पहले आप इसको देखिए, अगर आपको कोई स्लाइड पसंद आती है तो मैं रिपीट भी करूँगी, आप इसको. हाँ, आप पिक्स ले सकते हैं. नहीं, आप अपना पेपर पेन साथ में रखें, नोटिंग करें. आपको पिक्चर्स लेनी है. नहीं, सेम टू सेम पूरा पीपीटी तो यू वोंट बी एबल टू गेट ऑन द नेट, बट डेफिनेटली टाइम नहीं है उनके पास. अच्छा, कोई बात नहीं. राइट. सी नहीं, ऐसा नहीं है. 1.5 घंटे की चीज़ 10 मिनट में नहीं दिख जाएगी, इसलिए आप राइट के टेक नोट्स, आप नोट्स ले सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. ओके, सो कांस्टेंट फियर, जब कांस्टेंट ये चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे हमने देखा है ना, हमारा वो पूरा लूप है ना, बोर हो रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं. तो ये हम धीरे धीरे अंदर से तो फियर जनरेट हो ही रहा है. हमें पता, हमने आपको बच्चों को पता होता है कि यार डर लग रहा है, चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, जो हम चाह रहे हैं, आज हमें इतना पोर्शन ख़त्म करना था, वी आर नॉट एबल टू डू. तो इट क्रिएट स्ट्रेस. सो हाउ इट लुक्स, कैसा दिखता है वो स्ट्रेस, कैसा दिखता है? लेट्स सी. सो एक्सेसिव स्वेटिंग है ना, बहुत हाथों में है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है. देन शॉर्टनेस, ऐसा लगता है कि बहुत ब्रेथलेस जो है, शॉर्ट फील ऐसा लगता है. या फिर बहुत हार्ट बीट तेज़ लग रही है ना, सुबह शाम, कभी कभी इवनिंग में लग रहा है कि बहुत हार्ट बीट रैपिड हो रही है. देन ब्लैकआउट्स फील होता है, अंधेरा छा रहा है, ऐसा लगता है दिख नहीं रहा है, ब्लैकआउट्स होता है आपको. देन या तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है या बहुत कम हो गई है ना, खाना जा नहीं रहा है, पेरेंट्स को लग रहा है कि आजकल बच्चे ठीक से खा नहीं रहे हैं. सो इट इज़ जनरेटिंग फियर. देन नींद नहीं आ रही है, रात भर जगे हैं और रात को क्योंकि जगे हुए तो सुबह पढ़ नहीं पा रहे हैं, सो स्लीपलेसनेस भी बढ़ रही है ना. तो दीज आर द सिम्टम्स कि हमें पता चल रहा है कि इट इज़ क्रिएटिंग फियर, इज़ क्रिएटिंग स्ट्रेस, इज़ क्रिएटिंग. ओके. देन रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव थॉट्स जो है कि पता नहीं क्या होगा, अगर मैं वहाँ एग्ज़ाम टाइम में सब भूल गया तो, अब मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन वहाँ टाइम पे जो क्वेश्चंस मैंने लर्न किए हैं वही नहीं आए तो. सो दीज आर द नेगेटिव थॉट्स कीप कमिंग इन योर माइंड. ओके. देन क्राइंग स्पेल्स, बिना बात के बहुत रोना भी आ रहा है, छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी आ जाता है ना. तो ये भी होता है. और भूल गए, ऐसा लगता है 4 दिन पहले पढ़ा था, मम्मी को आकर रो के बोलते हैं कि मम्मी सब भूल गए, ऐसा लगता है कुछ याद ही नहीं आ रहा है. सो दिस इज़ स्मॉल थिंग्स, इट क्रिएट्स फियर. और छोटी छोटी जो फियर्स हैं, जो स्ट्रेस हैं, ये इस तरह से हमारे बॉडी में दिखने शुरू होते हैं.
और इसकी वजह से भी हम पढ़ने में ज़रा टफ लगता है कि अभी कल जो मेरा प्रोडक्टिविटी थी याद पढ़ने की वो आज थोड़ी कम हो गई है, बिकॉज आई एम फीलिंग दीज टाइप्स ऑफ सिम्टम्स इन माई बॉडी. ओके, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, जो हम आज पढ़ रहे हैं वो और फोकस उसका लो है, लो फोकस एंड लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, नाउ डज इट हैपन टू एवरीवन? क्या ये सबको होता है? आपके पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप पूछ सकते हो क्या उन लोगों को भी ऐसा होता था एग्जाम में? इवन सर विल सेल, सर आपको भी ऐसा होता था क्या? यस, सो एवरीवन जो भी पढ़ाई के दौर से या जो भी, इवन यहाँ खड़े होके बोलना भी अपने आप में एक टेस्ट है. तो हम इससे दौर से गुजरते ही हैं. फियर और एंग्जाइटी, इट्स वेरी नॉर्मल, दिस इज़ वेरी नॉर्मल. और क्या होता है 20 to 30% लोगों को ऐसा टेस्ट और एग्ज़ाम, इवन आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन जो प्रोग्राम देते हैं कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी कई बार उन्होंने कहा है कि उनको अभी भी जब लोगों को एड्रेस करना होता है इट बिकम्स वेरी एंग्शियस, उनको एंग्जाइटी होती है. तो इट्स वेरी नॉर्मल टू गिव अ टेस्ट एंड फील एंग्शियस. सो इट इंक्लूड्स फेलियर, डर लगा रहता है ना फेलियर का, इसलिए हम ये फील करते हैं. फाइन. तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो थॉट्स हैं और इमोशंस हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस स्ट्रेसफुल टाइम में, और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. ओके, तो हमारे जो थॉट हैं, सपोज थॉट है अभी तो बहुत सारा कोर्स बाकी है, सपोज ये थॉट आ रहा है, सो हाउ इट विल क्रिएट आपका इमोशन, या हम कैसा फील करेंगे. इमोशन मतलब फील क्या करेंगे, तो उस समय क्या फील होगा. अगर आप बोल रहे हो कि मेरा तो बहुत सारा कोर्स बाकी है, तो व्हाट यू फील देन, यू टेल मी. एंग्शियस, और फीलिंग क्या होगा, जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है ना. तो हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है. एम्बैरस फील होता है कि बाबा रे सारे फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. सो यू मे फील एम्बैरस, रेस्टलेस भी हो रहे हो, एंगर भी, गुस्सा भी आ रहा है, और डर भी लग रहा है ना. तो ये फीलिंग्स हमें आने लगती हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट सोच के कि कितना कोर्स बाकी है, ख़त्म नहीं हो रहा है. देन एक्शन में क्या हो जाता है, और हम अवॉइड ही करने लगते हैं, आज नहीं पढ़ना है, या आज हम कितना सारा बाकी स्टिल नहीं पढ़ पा रहे हैं, फोकस ही नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ हाउ इट अ सिंपल स्टेटमेंट विल कीप इफेक्टिंग योर इमोशंस एंड योर एक्शंस. ओके, सो दिस इज़ अ पिट, एक गड्ढा सा है. कैसा गड्ढा है, जिसमें आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आपको आगे जाना है, लेकिन ये जो लूप हमने देखा था उस लूप हमको कहाँ ले जा रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब डिले करना. पढ़ना है पता है पर नहीं पढ़ पा रहे और डिले करते रहेंगे, अभी नहीं दोपहर में पढ़ेंगे, दोपहर में नहीं शाम को पढ़ेंगे. सो वी प्रोक्रेस्टिनेट. ओके, सो अभी क्या करें, कैसे करेंगे, हमें समझ में आ रहा है क्या करना है हमको. So how there is a tool called SOS. You have paper, pen, note. So do note it down. तो हम SOS करते हैं. SOS का नाम उसको हम ब्रेकअप करते हैं. It is S is stop and aware. स्टॉप और अवेयर हो जाओ. जब आप लगता है कि मेरा मूड नहीं हो रहा, अभी मुझे पढ़ना था, आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, या आई एम गेटिंग बोर्ड, या आई एम गिविंग एक्सक्यूजेस टू माई मम्मी कि मम्मी अभी नहीं पढ़ रहा है. सो आई एम इन टू दैट लूप. So I'm not studying. So that is the time I need to say to myself, stop and aware. Stop and aware, and what is happening? Observe. What is happening? So stop, aware करके अपनी breath को देखिए, है ना. Then आप thoughts को check कर सकते हैं. क्या जैसे हमने बहुत सारा कोर्स बाकी, क्या मैं सोच रही हूँ, वो हमें चेक करना है. एंड देन स्विच करना है. ये हम अभी सीखेंगे कि कैसे स्विच करते हैं. ठीक है, तो स्विच करना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ एंड कोई फिजिकल एक्टिविटी के साथ. ये भी हम धीरे से समझने वाले हैं कि ये प्रैक्टिकली हम करेंगे कैसे. ओके, सो जो एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी जो फिजिकल सिम्टम्स को पैदा करती है, वो कैसे बॉडी में कैसे दिखती है, बॉडी में कैसे फील होती है. आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल, है ना. एक्चुअली में होता भी है क्या, हमको कैसे फियर हो जाता है. तो अगर सपोज आप हाइकिंग पे जाते हो, कभी हाइक करते हुए कभी गए हो राइट. सो सपोज आप हाइक के लिए गए हो, आप मान के चलो, और आप किसी हिल तक पहुंच गए हो, आप बहुत एक्साइटेड हो वहाँ पहुँच के. ठीक है, आइज़ क्लोज करो, क्लोज योर आइज़, एवरीवन कैन डू.
क्लोज योर आइज एंड यू आर ऑन द हिल. आप एक हिल पे पहुंच चुके हो, बहुत खुश हो, इतनी दूर तक चल के आए हो, है ना. बहुत सारे स्टोन्स, बहुत सारे पाथ बहुत अच्छा नहीं था, कंकड़ थे, और धीरे धीरे आप वहाँ मुश्किल से पहुँचे हो, और आप धीरे धीरे उस हिल तक पहुँच के आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और एक क्लिफ है, उसके ऊपर आप पैर लटका के बैठ गए हो. सपोज आप बैठ जाओ और बैठो तो नीचे बहुत खाई दिख रही है, बहुत डीप खाई है. खाई इन द सेंस पिट, बहुत बड़ा गड्ढा सा है, बहुत सारा, ठीक है. लेकिन आपको वहाँ पहुँच के अच्छा लग रहा है. आप पैर लटका लिए हैं और वहाँ बहुत सारी विंड, ब्रीज चल रही है, और इतनी तेज़ ब्रीज चल रही है कि आप पूरे हिल गए हो. अगर आप हिल गए हो तो आपने देखा आपके हाथ का जो बैग या बॉटल है वो आपके हाथ से छूट के बहुत बड़े गड्ढे में स्लिप हो गई है. आप उस ब्रीज से पूरे बॉडी को हिलते हुए देखो, अपनी बॉडी को, और आप ऑलमोस्ट बचे. गिरते गिरते आपने अपने क्लिफ को पकड़ लिया है, जिस हिल को पास खड़े हैं वहाँ से आपने टहनी को पकड़ा है. हवा बहुत चल रही है, धीरे धीरे अपने आप को समेटिए, स्लोली अपने आप को बचाते हुए आप खड़े हो गए हो. आप पूरे बॉडी में शेक हो रहे हो, आप अपने आप को संभाल के खड़े हो. धीरे से आंखें खोल के चेक करो क्या फीलिंग्स आ रही हैं. हाउ यू आर फीलिंग? क्या लगा? यू वर देयर, वहाँ पर बैठे थे, आप बैठे थे. तो जब मैंने कहा आप हिल रहे हो, गिर सकते हो, डर लगा, पर आप तो इस कमरे में हो. इज दिस फियर रियल? नहीं. सो दैट इज़ द रीज़न. ये हमें यही देखना है, जो हमारे फियर्स हैं वो रियल नहीं हैं, वो हमें प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, बट हम वो उनको रियल समझ रहे हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वो एंग्शियस बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्योंकि जब मैंने आपको कहा तो आपको लगा होगा ना कि ओह, बॉडी में चेंजेस फील होते हैं ना, जब आप खुद को वहाँ डरे हुए देखते हो तो देयर आर चेंजेस इन बॉडी. सो दीज आर द बॉडी सेंसेशंस. सो व्हाट डू यू डू? आपको एक, हमें इसको निकालने के लिए देयर इज़ अ प्रोसेस टू डू दैट. सो हमको ड्रेन करना है दैट इमोशनल फॉग विच इज़ देयर. कैसे करेंगे? लेट्स सी दैट. हम करेंगे, है ना. सो विल डू दैट. इन एक एक्सरसाइज है, तो देयर इज़ अ ब्रेन फॉग. आप आओ करने के लिए, आ जाओ. सो विल डू वन एक्सरसाइज. इसी हमारे ब्रेन में बहुत सारे एक्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, और हम ब्रेन फॉग इन द सेंस कि हमें बहुत प्रेशर आ रहा है ना. तो हम करेंगे, डू 4 टाइम्स करेंगे. आप भी करिए, सब लोग करिए, 4 टाइम्स करेंगे, है ना. इट इज़ द डक्ट वी आर रिलीजिंग द फॉग. ये हम इसको, आपको बहुत आराम फील होगा. नाउ आप अपने नेक में करेंगे 4 टाइम्स दबाते हुए. जब आप देखेंगे, जब आपको स्ट्रेस होता है, आप बहुत फटीग फील करते हैं, तो देयर इज़ अ स्ट्रेन हियर, ओके. एंड योर नेक बोन या कॉलर बोन को करेंगे. कॉलर बोन को प्रेस करेंगे अंदर से बाहर की तरफ 4 टाइम्स, राइट. एंड बैक साइड 4 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स करेंगे. सो हम एक तरह से अपने फॉग, ये अपने इमोशनल, जो हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं, उसमें ये वाला हम टेक्निक यूज़ करके अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं उन दैट मोमेंट ओनली, है ना. तो हम ड्रेन करेंगे अपने इमोशनल फॉग को, और बॉक्स ब्रीथ करेंगे. मैम बताएंगी बॉक्स ब्रीदिंग. तो बॉक्स ब्रीदिंग, बॉक्स का कैसा बॉक्स है आपका? 4 स्क्वायर शेप में बॉक्स है. तो बॉक्स को ब्रीदिंग में कैसे करेंगे, मैम बताएंगी. बॉक्स आपने 3x3x3 का बनाया है कि आप जितना भी, आपकी कैपेसिटी कितनी है, हम स्टार्ट 3 से करते हैं. जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, मैं अभी मैम को करवा रही हूँ, यू कैन सी. सो मेरे 3 काउंट पे वो इनहेल करेंगी, 3 काउंट होल्ड करेगी, 3 काउंट में एक्सेल करेगी, और 3 काउंट में वॉइड, मतलब ना वो सांस लेगी ना वो छोड़ेगी. ठीक है, चलो आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं आप सबको करवाती हूँ. ठीक है. Inhale 2 3, hold 2 3, exhale 2 3, void
2 3 फाइन. सो ऐसे आप लोग भी करेंगे. क्लोज योर आईज. पहले हम 3 बार डीप ब्रीद इन मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ हम करेंगे. इनहेल, स्लोली एक्सेल. इनहेल, slowly exhale. Last time, inhale, slowly exhale. Now with my count, imagine a box. In 2 3, hold 2 3, exhale 2 3, void 2 3, inhale 2 3, hold 2 3, exhale 2 3. Now take a deep breath. Slowly exhale. When you feel comfortable, open your eyes. थैंक यू खुशबू मैम. सो हमने देखा कि हम अपने आप को कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं. ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जो हम ये बॉक्स ब्रीदिंग दिन में कम से कम 3 या 4 बार कर सकते हैं वाइल स्टार्टिंग. ओके, नाउ हमको देखना है कि ये ब्लैकआउट्स भी होता है. कई बार देखा होगा ना बच्चों को, सबको यू फील लाइक कि यू आर टोटली ब्लैंक या आपका ब्रेथलेस भी हो रहा है. सो दैट टाइम ये हम ब्लैकआउट के लिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं. 4 3 2 1 नाम लिखा हुआ है यहाँ पे. सो 4C, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक इस पूरे रूम में 4 चीज़ों को देखना है. बिकॉज बॉडी सेंसेशन, बॉडी को आपको इंगेज करना है. सो 4 थिंग्स यू कैन सी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दैट कॉर्नर. तो आपको 4 चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करो और जस्ट सी दिस थिंग. सपोज यू आर सीइंग दैट डोर. ओके, सो यू फाइंड डिटेल्स ऑफ दैट डोर. 4 चीज़ों को देखो. व्हाट इज इट? द कलर, द टेक्सचर, द वुड. ठीक है, और उसमें कुछ मेटल है, थोड़ा ध्यान से देखो. यू आर एंगेजिंग योर आईज टू दैट. ओके, सो ऐसे आपको इस रूम में 4 थिंग्स के लिए आपको अपनी आईज को एंगेज करना है. ओके, ना नेक्स्ट इज 3 थिंग्स टू हियर. 3 चीज़ों को सुनना है डिफरेंट. तो आप एक बार आईज क्लोज करके देखो इस रूम में कौन सी आवाज़ें आ रही हैं. ट्राई करिए, कुछ साउंड्स आपको अलग अलग आ रहे हैं क्या. तो 3 अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपको एड्रेस करके थोड़ा नोटिस करिए. आईज क्लोज करिए और देखिए 3 चीज़ें हैं नोटिस करने लायक अदर देन माई आवाज़. ओके, सो हमने शायद एसी की आवाज़ सुनी और इनके शूज़ की आवाज़ सुनी. शायद आपके आसपास कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ सुनी. तो हमने अपने सुनने की जो क्षमता है उसको डाइवर्ट किया है, उसको एंगेज किया है. राइट. एंड देन स्मेल. आप अपने आसपास की स्मेल को नोटिस करोगे. सो कुछ भी स्मेल हो सकती है. अगर आप पढ़ रहे हो तो आसपास की स्मेल हो सकता है. उस समय किचन में कुछ खाना बन रहा हो तो उसकी स्मेल आ रही है, तो उसको नोटिस करना है. ठीक है, आपका जो कपड़ा है, जो आपने क्लोथ्स पहने हुए हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं. वॉट एवर, बट यू आर एंगेजिंग योर नोज टू स्मेल्स. ओके, देन 1 टेस्ट और 1 टच. एग्ज़ाम में मैम सबको आइडिया देती हैं या उनको सजेस्ट करती हैं कि वॉट एवर क्लोथ्स, सॉफ्ट क्लोथ्स को आप अपनी बॉडी को टच करेंगे सो यू विल बी वेरी, आप अपने आप को काम डाउन रख सकते हैं. सो दिस इज़ अ मेथड. सो कई बार मैम बोलती हैं कि फर का अपना क्लाउच या अपना पर्स रखो, या फिर जो आपने पहना हुआ है सॉफ्ट टच है उसको टच करो. सो दैट विल हेल्प टू ईज योर बॉडी. ओके, सो दिस इज़ फॉर ब्लैकआउट्स. और व्हेन यू फील पैनिक तो इट गोइंग टू बी हेल्पिंग वेरी मच. आप अपने फ्रेंड्स को भी गाइड कर सकते हो. ओके, देन स्ट्रेच योर बॉडी. जहाँ आप बैठे हुए हो इमीडिएट आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो. करिए आप बॉडी को स्ट्रेच. हाँ जी, स्ट्रेच बॉडी करिए आज साइड में, फ्रंट में. सो दैट इज़ हेल्पिंग योर बॉडी, ब्रिंगिंग योर बॉडी टू दैट मोमेंट. माइंडफुल करने में इट इज़ गोइंग टू हेल्प. And self talk में these are the 2 things or I have written, but you can add your own.
So I am at ease, I am at pause, I am in control. You can write it down. So these are the important self-talk that will bring you in control. Because when you are fearful, when you are anxious, so you feel your control is not there. है ना, आपकी बॉडी और माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसा हम फील करते हैं. सो दिस मेथड विल हेल्प यू टू ब्रिंग योर कंट्रोल. ओके, सो बोलिए मेरे साथ में, आई एम एट पॉज, आई एम एट ईज, एंड आई एम इन कंट्रोल. राइट, थैंक यू. सो लेट्स सी दैट कि नाउ योर बॉडी इज़ अंडर योर कंट्रोल. सो अब हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो कंट्रोल में आ गई है, जो बहुत एंक्शियस हो रही थी. ओके, सो नाउ वी आर रेडी फॉर द एक्शन. अब हम पढ़ाई करने के लिए, एक्शन के लिए रेडी हो गए हैं. ओके, सो बॉल एक्टिविटी नहीं. ओके, सो हम देखते हैं कि कोई भी काम, कोई भी चैलेंज करने के लिए क्या स्ट्रेस इतना इम्पोर्टेंट है? ये पॉजिटिव हो सकता है. कैन यू हैव यू हर्ड अबाउट स्ट्रेस इज़ वेरी पॉजिटिव? नहीं, स्ट्रेस के बिना तो कोई काम नहीं कर सकते. यू कैन नॉट फिनिश एनी टास्क. इवन आप जहाँ अपने घर से यहाँ तक आए हो, दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रेस ना. गाड़ी निकालना, ट्रैफिक में जाना, यहाँ पे पूछना कहाँ किस रूम में जाना है. सो ऑल दिस इज स्ट्रेस. So without stress, you cannot achieve any task. You cannot complete or finish any task. Stress is so much important thing. हमने इसको बहुत negative notion में रखा है, but it's not. It's very important. It can be eustress. इसको हम क्या बोलते हैं? eustress and distress. क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट ही प्रॉब्लम है. हमारे कॉन्सेप्ट में है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. अरे स्ट्रेस नहीं होगा तो हम पढ़ाई ख़त्म नहीं करेंगे. यू कैन नॉट फिनिश योर स्टडीज़ और योर टास्क. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड यूस्ट्रेस, है ना. ओके, तो यूस्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट. क्या होता है यूस्ट्रेस से? इट प्रोवाइड प्रोडक्टिव एनर्जी. आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है. आप देखो स्पोर्ट्स में जब आप कुछ भी खेल रहे होते हो, या इवन आप फ्रेंड्स के साथ भी खेल रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, बहुत मस्ती चल रही है, कितनी एनर्जीज की ज़रूरत है. सो दैट टाइम यू आर नॉट फीलिंग लो, यू आर हैप्पी डूइंग, बट दैट स्ट्रेस इज नॉट दैट स्ट्रेस बिकॉज इट इज़ यू स्ट्रेस. ओके, एंड दैट इंक्रीज योर मोटिवेशन. क्योंकि हम उसको देख रहे हैं ना कि पढ़ाई बहुत तकलीफ है, इट्स पेनफुल, है ना. इस पेन में से कौन गुजरेगा, है ना. लेकिन ये जो क्या है, इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि हम उसको डिस्ट्रेस के रूप में देख रहे हैं. So my perception towards exam or test is because we feel it is a distress. The time we will start taking it as a stress or as a challenge or as a game, it almost सब कुछ चेंज हो जाएगा. आपका परसेप्शन चेंज, तो आपकी जो तैयारी है, आपकी जो चार्ज है, पॉजिटिविटी है, आपको जो एनर्जी है, इट विल चेंज. वाई? बिकॉज नाउ आपका नज़रिया जो है वो चेंज हो गया है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट गोइंग टू हेल्प? राइट? इज इट सो टफ? नहीं. जैसे हम गेम्स खेलते हैं तो हम कितनी चार्जअप होते हैं. सिमिलरली हमको ये फील करना है कि एग्ज़ाम भी एक चैलेंज है, एग्ज़ाम में कंपटीशन है और बड़ा मज़ा आएगा. सो आई तो टेल कि इट्स अ फेस्टिवल rather than हमने स्टार्ट किया तो वेदर अच्छा नहीं है, एवरीवन इज़ बिजी, एवरीवन इज़ हेल्पिंग ईच अदर कि भाई डिस्टर्ब ना हो. बट इट्स अ फेस्टिवल. यू विल बी इन अ न्यू कॉलेज में जाओगे, यू हैव फिनिश योर 1 year, राइट. वी नीड टू सी दिस इन दैट ग्लास ओनली. ओके, So I will win today. What is the notion? आज हम क्या देख रहे हैं? आज हमने अपनी बॉडी को तैयार कर लिया है. We are ready to do action. And how will we do? Because this is the thing which we are keep telling ourselves. क्या बोलना है? Because now it is a challenge. It is not a distress, right? So what I am feeling? I am feeling like कि I will win today. आज ही मैं जीतने वाली हूँ. I'm not waiting for 2 months or 1 month. When are the dates? एग्ज़ाम्स कब से? दिस. ओके, ऑल द बेस्ट. ओके, सो आई विल विन टुडे. मुझे आज जीतना ही है. कौन सी लड़ाई है आज की? आज का कोर्स ख़त्म करना इज़ द लड़ाई टुडे. सो मेरा चैलेंज क्या है कि मुझे जो मैंने आज प्लान किया है वो मुझे आज पूरा फिनिश करना है, एंड आई विल विन टुडे. ओके, सो व्हाट इज़ इट?
सो वॉट मेक माई एग्ज़ाम अ चैलेंज, मेरा एग्ज़ाम मेरे लिए चैलेंज है एंड आई फील वेरी एक्साइटेड अबाउट, बिकॉज चैलेंज गिव्स यू एक्साइटमेंट एंड इट चार्जेस यू. ओके, सो हाउ विल मेक इट? सो मुझे बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको कॉन्कर करनी है सो दैट आई कैन विन दिस गेम. ओके, what are the things I need to conquer? Sleep, food, fun, parents, friends, time. ये सब चीज़ों को कॉन्कर करेंगे तो हम जो चाह रहे हैं वो हम कर पाएंगे. What is that? नींद, बहुत सारी नींद आ रही होती है ना. कैन आई कॉन्कर इट? मैं मैक्सिमम टाइम पढ़ पाऊँ. उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि डूइंग स्मॉल मेडिटेशन. अगर आप थोड़ा ब्रेथ लेके थोड़ा आप डीप मेडिटेशन सीखते हैं, सो दैट विल इंक्रीज योर कैपेसिटी ऑफ नॉट स्लीप. इतनी आपको नींद की ज़रूरत नहीं है ना. वी नो दैट अवर प्राइम मिनिस्टर स्लीप्स वेरी लेस. वाई? बिकॉज ही मेडिटेट्स. ही डजंट नीड दैट स्लीप, राइट. देन फूड भी हम हैवी फूड खाएंगे तो सोते हैं, क्योंकि हमें लगता है वी नीड. एंड जैसे हमें एंक्शियस होते तो हमें बस जंक फूड खाना होता है. तो एग्जाम्स टाइम है तो वी कीप आस्किंग मदर को, मम्मी अच्छा खाना बनाओ, बहुत पढ़ना है मुझे. सो समटाइम्स इवन फूड की वजह से भी हम बहुत स्लो हो जाते हैं या नींद बहुत आती है. सो वी नीड टू सी दैट कि वेदर फूड इज़ करेक्ट, हम ठीक से खा रहे हैं क्या. ठीक. एंड फन, मैंने हमको बहुत सारे बच्चे सब इसी में लगे होते हैं कि इतना पढ़ना है, कोई फ़न नहीं है. सो वो भी हमें कंट्रोल करना है कि अभी मैंने इतना पढ़ लिया ना, अभी मुझे ये वीडियोस देखने दो. अभी मैंने इतना पढ़ लिया ना, अभी मुझे एक वेब सीरीज़ देखने दो. सो इट इज़ यू नीड टू कंट्रोल दैट. यू नीड टू सी दैट कि नहीं, आई एम वेटिंग बिकॉज आई एम रेडिंग माई सेल्फ फॉर द चैलेंज. सो आई कैन कट ऑन इट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम. ओके. देन पेरेंट्स को भी हम, पेरेंट्स जो है वो खुद अपने आप में डरे हुए बच्चों को देख के उन्हें लगता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू हेल्प देयर चिल्ड्रन, है ना. तो उनकी खुद के फियर्स एंड एंग्जाइटी आर पास ऑन टू द चिल्ड्रन मेनी अ टाइम्स. सो यू नीड टू, आगे हम देखेंगे कि कैसे हम उसको करें, पेरेंट्स को कैसे करेंगे. लेट्स सी दैट फ्रेंड्स एंड टाइम. ये भी पता है आपको, टाइम कॉन्कर करना है. इफ़ यू वांट टू कॉन्कर दिस बैटल और दिस चैलेंज, वी नीड टू कॉन्कर आवर टाइम, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स. हाउ विल डू दैट फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स? विल सी फर्स्ट. सो स्लीप है आपके 8 आवर्स. शॉर्ट नैप्स, आपको सबको पता है कि छोटी छोटी बीच में नैप लेते हैं. और जब आप नैप ले रहे हैं तो यू कैन सेट अन अलार्म और यू कैन टेल योर मदर और फादर कि अब मुझे 1 घंटे में या आधे घंटे में मुझे उठा दें. सो दैट विल हेल्प. और सेट कर सकते हैं. देन स्मॉल पोर्शन खाना थोड़ा कम खाएंगे, ज़्यादा खाते से नींद आएगी. देन होममेड आपको हेल्दी रखेगा. देन ये हमें सब दिया हुआ है. आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट फूड्स और नट्स आपको हेल्प करेगा, आपको मेमोरीज़ को शार्पन रखने के लिए और सब चीज़ों को याद रखने के लिए ये आपको हेल्प करेगा. स्प्राउट्स, सैलेड्स एंड नट्स. फाइन. देन हम देखते हैं फन में प्ले और एक्सरसाइज जो करनी है वो हम ये करते हैं, बट इट शुड बी वेरी लिमिटेड. आपको पता होना चाहिए दिन में थोड़ा खेलना बहुत ज़रूरी है. सो दैट विल हेल्प. आपके रूम के या बाहर हम छोटी छोटी जो ब्रेक्स लेते हैं, इट शुड नॉट बी ब्रेक विद द फोन और द टीवी. इट शुड गो विद द फिजिकल एक्टिविटी. दैट विल गोइंग टू इंक्रीज योर फोकस एंड इट इज़ हेल्दी. ओके. अभी हमें देखना है कि हमने बात की थी कि हमें पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है. बाउंड्रीज इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं सेट करेंगे तो कई बार उनके फियर्स या उनकी प्रॉब्लम्स जो वो जिस चीज़ से डर रहे हैं वो आप तक रीच कर जाता है ना. दैट इज़ ऑल्सो इफेक्टिंग, है ना. कि जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तू बहुत सुबह से देख रही हो, तू पढ़ ही नहीं रही है, ऑल्दो यू आर स्टार्टिंग, एंड मेनी अ टाइम्स यू फील लाइक मम्मी बोल रही हैं एंड दैट इज़ मेकिंग मी इरिटेटेड. फाइन. तो क्या करेंगे? सो वी आर creating a mental shield. Okay, imagine it's a mental shield. तो mental shield है तो दिखने वाली नहीं है, लेकिन आप imagine कर रहे हैं this is a shield around me and I'm not being touched by the activities or the thoughts or the response or reactions of the people around me. It may be your friend, it may be your parent. Okay. And after that, when you feel like, जैसे सपोज एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल है कि पेरेंट्स ने डरे हैं कि देखो अगर तुम्हारा इस बार तुम पढ़े नहीं तो तुम्हारा एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो यू विल नॉट गेट द स्ट्रीम और द गुड कॉलेज यू वांट. तो दे आर पासिंग इट टू यू. सो वो जो फियर है उसको मैं अपने आप तक कैसे रोक लूँ? सो आई एम नॉट गेटिंग एंगेज विद दैट थॉट, नंबर 1.
And then what will I do? I will keep myself SOS tool, what we see, हमने पहले देखा था बॉक्स ब्रीदिंग, उससे मैं अपने आप को थोड़ा सेटल डाउन कर लेती हूँ, right? Because I have stopped taking it, but now I am doing SOS tool, and I will convert that negative thought to the positive. What was the positive thought we said that time? Can you repeat? What was that? I'm in control. राइट जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे इवन फ्रेंड्स की तरफ से आते हैं, फ्रेंड्स भी बोल रहे होते हैं ना, मेरा तो ये इतना सारा ख़त्म हो गया, तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं होगा, या ऐसा कुछ है, यू फील वेरी डिप्रेसिव, यू फील लाइक कि ओ आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड. So that time what we'll do, we'll see that there's a imaginary shield around me. It's a mental shield, and I'm protected myself. Okay, and I will do this SOS tool and converting that negative into the positive. Is it easy? Okay, practically applicable? Fine. So what is it? So now the time. now हमें देखना है कि टाइम को कैसे शेड्यूल करें. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे दिन भर को टाइम को कैसे हम सेग्रीगेट करें सो दैट फुल्ली वी आर एबल टू यूज दैट, है ना. बिकॉज इट्स अ चैलेंज इज आई वांट टू विन टुडे, आज के दिन को मुझे विन करना है. सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट विल आई डू? आई विल डू दिस टाइप ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स. सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस टेक्निक्स. आर यू रेडी? ओके. So there are few new study techniques you may be practicing. आप शायद कर भी रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको थोड़ा रिवाइज भी करा देते हैं और आप प्रैक्टिकली यूज़ करके भी देखेंगे. इट इज़ गोइंग टू हेल्प. फाइन. सो व्हाट इज़ इट? इट्स अ पोमोडोरो टेक्निक. हैव यू हर्ड अबाउट एनीवन? नहीं, ठीक है, तो फिर हम करेंगे. ये मेथड जो है ये आपको फोकस रखने में हेल्प करता है और फ्रेश फील करेंगे आप. क्या है? पिक अ टास्क. सपोज आपने ये टास्क उठा लिया है कि मुझे अभी इतना पोर्शन आज अभी होमवर्क करना है या पढ़ना है या लर्न करना है या प्रैक्टिस करनी है. सो पिक अ टास्क एंड देन सेट अ 25 मिनट टाइमर सेट कर दीजिए कि 25 मिनट्स तक मुझे इसमें से हिलना नहीं है ना, मुझे ये 25 मिनट्स में फिनिश करना है सपोज, है ना. देन वर्क ऑन योर टास्क अंटिल द टाइमर इज़ अप. टाइमर अब जब तक नहीं होगा मुझे हिलना नहीं है 25 मिनट्स. ओके. एंड उसके बाद मुझे 5 मिनट का ही ब्रेक लेना है. फिर उसके बाद एवरी 4 पोमोडोरो के बाद मैं फिर 15 या 20 मिनट का ब्रेक ले सकती हूँ. दिस इज़ पोमोडोरो टेक्निक. 1 2 स्टेप्स है ये, 1 2 3 4 5. अब इस दौरान जब मैं कर रही हूँ, इस दौरान हो सकता है कि मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, क्योंकि माइंड तो अंदर है ना, दौड़ेगा इधर से उधर, कूदे लगाता रहता है पेड़ों के ऊपर, है ना. So we cannot make it, उसको फोकस करना टफ हो रहा है. So what we'll do, we'll make a distraction sheet. बगल में ही एक शीट बना देंगे, डिस्ट्रैक्शन शीट. ठीक है. अभी दिमाग में कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ. 4, हाँ. 25 मिनट्स के अगर मैंने 4 कर लिए हैं तब मैं 15 से 20 मिनट का ब्रेक लूँगी. नहीं, अगर मैं 3 घंटा लगातार पढ़ रहा हूँ तो नहीं होगा कॉन्सेंट्रेट. लेकिन जैसे ही मैं अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि सिर्फ 25 मिनट्स पढ़ना है, तो माई माइंड इज सपोर्टिंग मी, मेरा कॉन्सेंट्रेशन फोकस बढ़ जाता है. जैसे ही मैं सिर्फ छोटे टर्म के लिए, अगर यही 3-4 घंटे ना, 4 पोमोडोरो तो मैंने 2 घंटे निकाल दिए. अब 2 घंटे में बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना लॉस ऑफ फोकस के पढ़ पा गई, क्योंकि पता ही नहीं चला ना मुझे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मेरा फोकस ज़्यादा बढ़ेगा. राइट. सो दिस इज़ पोमोडोरो. इट हेल्प्स अ लॉट. जैसे आप बोलोगे 2 घंटे पढ़ना है तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन इधर उधर जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको बोलोगे 25 मिनट्स ही पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक भी मिलने वाला है, सो दैट योर फोकस विल बी देयर. सो दिस अ टेक्निक. ओके. एंड डिस्ट्रैक्शन शीट होती है. डिस्ट्रैक्शन जैसे आप कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो बच्चों का किसी का फ़ोन आ रहा है या उसको किसी को कॉल करना था या दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, सो उस शीट में आप लिख सकते हो. सपोज इट इज़ आई एम थिंकिंग अबाउट कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम यहाँ घूमने जाएंगे,
So all of a sudden, within that 25 minutes, that thought is coming, and that will deviate my study. So I will write it down there. What I will write? Thinking about holiday. So I will write it down. Not now. 25 minutes is continuous focus, right? So it's very productive method. Okay, and next, it's a फेनमैन आप देखेंगे ये भी एक मेथड है, टेक्निक है पढ़ाई करने के लिए. तो सिलेक्ट ए कॉन्सेप्ट टू लर्न. अगर मैंने सोच लिया आज कुछ नया लर्न करना है मुझे, तो मैं कह रहूँगी उसको उस सिलेक्ट टॉपिक को सिलेक्ट किया. देन व्हाट विल डू, टीच योर सेल्फ और समवन एल्स. क्योंकि कई बार होता है हम बोर हो जाते हैं ना सेम स्टडी पढ़ते पढ़ते. तो आई विल टीच दिस कॉन्सेप्ट टू मॉम. चलो मम्मी बैठ जाओ अब, आई विल टीच यू. पता है ये कॉन्सेप्ट इसको ऐसे बोलते हैं, दिस इज इट, राइट. तो ऑल ऑफ ए सडन यू आर नॉट बोर्ड with that same topic because you are teaching to someone else, right? This helps. Or what you can do, you can go back, return to the material. Course material में वापस जा सकते हो क्योंकि ये छोटा सा break, you are not taking a break, you are teaching the concept to your parent or to your friend or to your sister or sibling. So it will help focus में, and फिर वापस अपने course material पे आप वापस जा सकते हो. एंड देन सिंप्लीफाई द एक्सप्लेनेशन. हाँ, जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारा किसी को पढ़ाने में जो मतलब की लर्निंग होती है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है, राइट. वही सेम कॉन्सेप्ट जो आप कंटिन्यूसली कई बार पढ़ रहे हो, यू गेट बोर्ड अबाउट एंड यू विल फाइंड कि इट्स डिफिकल्ट टू रजिस्टर. बट द टाइम यू टीच समवन और उसकी एक्सप्लेनेशन को आप कुछ एनालॉजी के साथ समझाते हो, है ना. हम याद है हम लोग केमिस्ट्री के कैसे फॉर्मूले, कैसे अजीब तरह के लिंगोज या वो बना के लर्न करिए है ना, किया है ना. तो सिमिलरली दैट हेल्प्स, है ना. सो इट इज़ अ मेथड जो बहुत हेल्प करता है, लाइक अ गेम. ओके, सो माइंडफुलनेस टेक्निक में हम देखते हैं कि माइंडफुल रहें, इसके लिए क्या कर सकते हैं. माइंडफुल इन द सेंस ब्रिंगिंग द अवेयरनेस टू द फोकस टू द स्टडी. सो व्हाट वी कैन डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल टिकटॉक मेथड है ये, चुटकी बजाओ. क्योंकि यू आर नॉट एबल टू फोकस, स्टडीज़ में से ध्यान जा रहा है, यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, यू आर नॉट ब्रिंगिंग दैट प्रोग्रेस. तो आपकी जो चुटकी है कैसे बजाते हैं, सब बजाइए. यस, जोर से बजाओ. व्हाट इट इज़ टेलिंग योर माइंड टू ब्रिंग योर फोकस डाउन टू द स्टडी. ओके, सो चुटकी बजाओ, 1 2 3 4 ऐसे हम बजाते हैं. देन उसके बाद मूव योर हेड. आपके हेड को आप देखो स्टडीज़ में वापस लाने के लिए इट्स अ सिंपल टेक्निक. अपने हेड को मूव करो. इट इज़ टेलिंग योर माइंड टू कम बैक. ओके, देन स्ट्रेच योर बॉडी. वी डिड दैट स्ट्रेचिंग. हम बॉडी को स्ट्रेच करेंगे. एंड टैप योर फीट. फीट टैप करना इज टेलिंग योर बॉडी एंड माइंड टू ब्रिंग योर फोकस टू द स्टडी. So it is a mindfulness tool for TikTok. TikTok is a mindfulness tool. Okay? So एक बार फिर से repeat करेंगे. चुटकी बजाओ, 1 2 3 4. Then move your head, 1 2 3 4. And then stretch your body. Body को stretch कर लो. And tap your feet. Now you don't need to leave your place. अब आपको प्लेस को छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है. आप जहाँ बैठे हुए हैं आपका कंसंट्रेशन आपका वहीं वापस फोकस विल कम बैक, राइट. व्हाट यू से, इज इट गोइंग टू हेल्प, राइट. ठीक है, इट्स अ वेरी इनोवेटिव मेथड, राइट. सो एंड ब्रिंग योर बॉडी एंड माइंड टू प्रेजेंट. क्योंकि हम ये मेथड क्यों कर रहे हैं, ताकि हम प्रेजेंट में उसको ला सकें. वी आर थिंकिंग हियर एंड देयर. ओके, so we are thinking about our past, we are thinking about the future, so we are bringing our mind to present. Okay, now your strategy. हम अपनी strategy और फिर से बनाते हैं, कुछ और नया करते हैं. हमने देखा अपने बॉडी को कैसे स्ट्रेस से, फियर से बाहर निकाला है, वो हमने टूल्स देखे, है ना. अब हम और एक स्ट्रेटजीज सीखते हैं. क्या स्ट्रेटजी है, बिकॉज इट इज़ अ चैलेंज. मेरे पास चैलेंज है, मेरे पास हार्डली few days are left. मेरे पास बहुत कम दिन रह गए. तो अगर मैंने साल भर में भी कुछ ज़्यादा पढ़ाई करी है, लेकिन क्या ये लास्ट लैप जो है ये मुझे क्या एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में हेल्प कर सकता है क्या, इज़ दैट स्ट्रेटजी. ओके, लेट्स सी. तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं. कुछ चैप्टर्स जो हैं जिस पे हम बहुत पसंद करते हैं या मुझे वो आते हैं, और कुछ चैप्टर्स जो हैं जिस पे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ. तो वो हम लिस्ट कर लेते हैं कि यार इस सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट टॉपिक्स जो है
मैं कर सकती हूँ, ये टॉपिक्स में टफ लगते हैं या आई डोंट लाइक इट, देन व्हाट हैपन आफ्टर डूइंग इजी चैप्टर देन आई विल डू द, हम जैसे सुबह मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं, इट्स अ पीस टाइम, वो हम अच्छा लर्न कर सकते हैं, सो दैट टाइम कैन बी यूज टू टफ टॉपिक्स, जो फ्रेश हम पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक मुझे पसंद नहीं है, मुझे टफ लगते हैं, दैट कैन बी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग टाइम, है ना, जो हमें हेल्प करेगा। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड योर ऑप्टिमम फोकस टाइम, सबसे ज़्यादा फोकस टाइम कौन सा होता है। इवनिंग में बच्चे जो है फोकस करना इज टफ ना, तो इवनिंग में आप फन टाइम आप बैडमिंटन खेल के आ सकते हो, राइट। और सबसे मॉर्निंग में अर्ली आवर्स में हम फोकस टाइम, या आपका सबका अलग अलग है, कुछ बच्चे रात को ही अच्छा पढ़ पाते हैं, सो इट इज़ फाइन, इट्स ओके, है ना। फाइंड द टाइम व्हेन यू यू कैंट फोकस प्रॉपरली, कौन सा टाइम है जो आपका फोकस नहीं हो रहा है, उस समय हम क्या कर सकते हैं, उस समय हम अपने रिवाइज कर सकते हैं, या आप हिचका या आपके झूले पे बैठे हैं और आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, होल डे आपने पढ़ लिया है, लेकिन आप वो टाइम पे रिविजन टाइम रख दो, आई एम रिवाइजिंग माई पॉइंटर्स, क्या क्या मैंने पॉइंट्स लर्न किए सुबह से अब तक, उस चैप्टर में क्या पढ़ा, इस चैप्टर में क्या पढ़ा, सो इवन व्हेन आई एम डूइंग दिस, झूले पे मैं बैठी हूँ तभी भी मैं याद कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ, सो दैट टाइम इवन आई एम नॉट फोकसिंग बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग माई मटेरियल, ओके फाइन। सो यूज़ योर सराउंडिंग्स फॉर योर बेनिफिट, आपके सराउंडिंग्स को अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक योर पेरेंट्स, है ना, आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हो, कैन यू डू यू हैव एनी आइडिया। ओके जैसे हमने वो टेक्निक में यूज़ किया, यू कैन एक बिठा के उनको बोलोगे आई विल टीच यू माय कॉन्सेप्ट, और क्या कर सकते हैं, राइट, जो मुझे आ गया बैठो और मुझसे पूछो, सो दैट आई कैन रिवाइज, है ना, वो मुझे याद हुआ है कि नहीं, मेमोराइज करने में हेल्प कर सकते हैं। और भी हो सकता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ नैप, आपको आधे घंटे का नैप चाहिए, या आपको लगता है इवन यू कैन टेल कि मुझे 1 घंटे में आके नैप टॉप याद दिलाओ, हो सकता है मैं सो जाऊँ, हो सकता है मैं आई एम नॉट रीडिंग, तो आप मुझे नॉक कर सकते हो, यू कैन यूज़ योर सराउंडिंग फॉर योर बेनिफिट, हर एक का अलग अलग हो सकता है, राइट फाइन। सो आप टेस्ट पेपर का रिविज़न जो है वो भी कई बार ऐसा होता है बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो बच्चे इसलिए नहीं करते कि पूरा प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए वो वोंट बी एबल टू डू टेस्ट पेपर्स रिविजन्स नहीं करते हैं, वॉट एवर इट इज़, चाहे 40% ही रेडी क्यों ना हुआ हो, बट यू नीड टू गिव द रिविजन टेस्ट पेपर्स, इट इज़ गोइंग टू हेल्प, इट स्पीड्स बढ़ती है, आज स्कूल्स में सब कराते हैं, वी नो एवरीवन इज़ डूइंग स्टिल फाइन। सो जब भी कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है इट्स वेरी टफ टू इस रिकॉर्डिंग, राइट, सो हम YouTube पे जाके जो टफ टॉपिक्स हैं उसको हम समझ सकते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड में वो समझ में आ जाएगा, वाइल यू सी दैट कि मैं रीड कर रहा हूँ या रीड कर रही हूँ बट टफ नहीं समझ में आ रहा है, तो इट्स बेस्ट ईदर यू कैन कॉल योर फ्रेंड हु कैन टीच यू, बहुत कम समय में आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस टाइम को, दिस इज़ अ स्ट्रेटजी यू कैन यूज़, राइट। ओके नाउ विल कंक्लूडिंग हम कर रहे हैं, सो हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं, ओके। सो बीइंग एंग्शियस इज़ वेरी नॉर्मल, यू आर नॉट अलोन, हर व्यक्ति इससे गुजरा है ना, हम सभी एंग्शियस होते हैं, दैट इज़ अ वेरी ह्यूमन थिंग, ओके। देन SOS और टिकटॉक टूल किया हमने, तो व्हाट वाज दैट SOS, बताएंगे कोई, व्हाट वाज SOS, राइट, तो स्टॉप एंड अवेयर, SOS है ना, हम ये टूल का भी यूज़ करेंगे जब हम एंग्शियस हो रहे हैं या हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो SOS टूल और टिकटॉक टूल माइंडफुल करने के लिए, जब भी आपको लगेगा कि आप पढ़ तो रहे हैं बट आप नहीं पढ़ रहे हैं, बुक सामने हैं बट यू आर नॉट डूइंग, सो दैट इज़ द टिकटॉक टूल यू कैन यूज़, राइट, मूविंग बॉडी एंड ब्रिंगिंग योर फोकस और अटेंशन ऑन द स्टडी, ओके। व्हाट नेक्स्ट, इट्स रूटीन एंड कंसिस्टेंसी, आपको इसमें से, इस गेम और इस चैलेंज में से एक ही चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से बाहर निकालती है, दैट इज़ व्हाट, रूटीन, रोज़ इस टाइम पे इतने बजे और कंसिस्टेंटली करना है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और इस दौरान मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो साल भर आपको लगता होगा कि यार इन तो भी क्लासेस ज़्यादा अटेंड नहीं करते हैं और ठीक से पढ़ते हुए नहीं देखा, स्टिल दे आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, एंड दैट इज़ द स्ट्रैटेजी, बिग लास्ट फ्यू मंथ्स दे डू कंसिस्टेंटली, दे डू देयर रूटीन्स एंड कंसिस्टेंट एंड दे एक्चुअली स्कोर गुड मार्क्स, that is also a reason, fine।
एंड पैट योर सेल्फ. जब आप पूरा दिन का कर लेते हो तो अपने आप को शाबाशी दो कि ओके मैंने आज तो कर लिया कोर्स. सो इट्स अ विन टुडे. आई एम एक्चुअली गिविंग माई सेल्फ अ पैट. देन स्टार्ट द नेक्स्ट डे अ फ्रेश. जो भी हो गया, हो सकता है आज जो मैंने सोचा था वो कंप्लीट नहीं कर पाई, जो मैंने प्लान किया था कि दिस वाज द कोर्स मुझे आज करना था, बट इट्स ओके. हो सकता है मैं नहीं कर पाए, बट इट डजेंट मीन दैट कि वी फील लो अबाउट. मुझे इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. यू स्टार्ट योर डे अ फ्रेश एंड टेक अ न्यू चैलेंज. नेक्स्ट डे हम अपना न्यू चैलेंज लेंगे. अगर सपोज मैं कल आधे घंटे का कुछ कोर्स मटेरियल छूट गया था, तो व्हाट इज़ अ न्यू चैलेंज फॉर नेक्स्ट डे. सो वॉट आई नीड टू डिसाइड ऑन मी कि मुझे आज अपने आप के लिए क्या चैलेंज लेना है. सो आज मैं नया तो पढ़ूंगी ही, लेकिन जो कल मैंने छूटा था वो कैसे कवर करूंगी. सो आज कैसे मुझे अपने आप को न्यू चैलेंज में फिक्स रखना है. सो दैट इज़ द थिंग वी नीड टू डू. एंड इम्पॉर्टेंट इज एन्जॉय द प्रोसेस. रिजल्ट कैसा भी हो, पढ़ाई के बाद हम जो पढ़ रहे हैं ना, दैट प्रोसेस इज़ वेरी एन्जॉयबल. एग्ज़ाम्स की जो प्रोसेस है बहुत खूबसूरत है. इट्स वेरी एन्जॉइंग. पूरा टाइम हम पढ़ते हैं, वो बहुत ही मज़ेदार है. मज़ेदार हो सकती है. इट इज़ इन योर माइंड व्हेन यू सी इट कि इसके एग्ज़ाम्स आप देखिए, रिजल्ट तो फट से एक दिन आएगा और चला जाएगा, लेकिन आप पढ़ कितने महीनों से रहे हैं. उस प्रोसेस में आपके पेरेंट्स का सपोर्ट देखिए, उसमें आपकी खुद की स्ट्रेंथ देखिए. आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इतने आवर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड यू कैन see your strength, you can find yourself in a new personality. अपने आप को अलग तरीके से देख पाते हो. So enjoy this process, okay? And सबसे पहले, और इसी तरह को हम ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि enjoy as a festival. It's not an exam, it's not a something very stressful or distress. It is an enjoyable process. So take it as a festival of exam. ठीक है, उत्साह से भर दीजिए. ठीक. Okay, so here I finish. Okay. So these are the statements you can write down or you can take a click. So एक बड़ा सा deep breath लेंगे और eyes को close करें. पहले read with me. My goal is achievable. These are the affirmations. My goal is achievable. I start my day early. I am disciplined and control. I can ignore external distractions. I push my limits. I pat myself for the hard work. I am at ease and enjoy the process. Okay? I will repeat. Close your eyes. Take a deep breath. Breathe in and breathe out. So I am repeating. आप मन में repeat करेंगे. My goal is achievable. Whatever goals I have set for the day, it is achievable. I start my day early. Whatever has happened yesterday, I can start my day early. I'm disciplined and in control. I can be on routine. I can manage consistency. So, I'm disciplined and in control. I can ignore external distractions. Whatever distractions are there, I'm able to control. I can ignore it. I can push my limits. I am daily pushing my limit. I am able to push my limits. I pat myself for the hard work of the day. I am at ease and I enjoy the process. I am at ease. I am under my control. I am relaxed. Breathe in, breathe out. And slowly open your eyes. Be comfortable. So, these are the affirmations you can write down and repeat before you go to sleep or any time. दिन में आप एक दो बार repeat करेंगे, that will help. Okay? Even when you are doing meditation and all. Fine? So, how is it? Is it going to help you? What are the things you like the most? Okay. Tools are effective. Yes. And if you feel anything you are not able to, so you can call us for any support. When you feel anxious or you feel like you need to talk to us, you can definitely contact us. Okay? Fine. I will close. Any question?
Please ask, sir, you want to ask me any question? ये अच्छा जी, फाइन. एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोग्राम? टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है? और दूसरा कि भले आप तो जानते ही होंगे, मैं भी समझा, इवन apart from these 12 exams, many of the things are useful for anybody. Yes, this is for sure. It is helpful for everyone. And every task is a test for everyone. Right, right, right. It is up. You have drawn it for these people and with your good heart. Okay, thank you, sir. Anything else you want to add or you want to ask me, please? Fine. अच्छा, क्या ये अब हमारे लिए इतना fearful नहीं रहा? क्या ये आप इस process को enjoy कर पाएंगे? And is it going to be a challenge or festival? What is it you are taking today? Huh? Festival. Okay, enjoy the process. Thank you so much, dear. Yes, bye-bye. Thank you. आपको कोई फोन करेगा, आप बताओगे, बात करोगे स्टूडेंट का, कोई स्टूडेंट को फोन कराएंगे तो बात करोगे. हाँ जी, बोलिए. जी. कुछ बच्चे तो जैसे कि उनको फियर और फील होता है कि मेरे को लगता है कि नहीं यार अभी इस पे डरा हुआ है या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फियर नहीं होता है उनको, मतलब कि वो पढ़ते भी, मतलब कि पढ़ते हैं बट उनको कुछ याद नहीं रहता है, बट उनको फियर नहीं होता है, हाँ ठीक है एग्जाम आ रहा है निकल जाएगा, बट उनका फियर अपने को लगता है पेरेंट्स एज ए. राइट. मेरी डॉटर है तो डॉटर के लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बट जी. टेकिंग केयर फॉर राइट. उसके लिए काफी सारी चीजें कि मतलब उसको पढ़ने को बोलो तो पढ़ना ठीक है, पढ़ रहा है, बट राइट. अगर वो फील रहा है एग्जाम आ रहा है मुझे कुछ करना, उसके लिए क्या है या कुछ हमको एज ए पेरेंट्स क्या है, अच्छा. उसके लिए क्या कुछ गाइडेंस राइट. वो मार्क्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं उसके, पढ़ लेता है? है और एवरेज है. अच्छा अच्छा, ठीक है. उसके लिए वाई टू डू, क्यों करना है उसको क्लियर नहीं है. जिस दिन वो उसको लगेगा ना कि ये मुझे अपने लिए करना है, या गोल्स आर नॉट सेट. 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये नहीं पता है कि मुझे ये पढ़ाई क्यों करनी है, पापा बोल रहे हैं इसलिए करना है, या मुझे अच्छे मार्क्स क्यों लाने हैं. जब वो सेट हो जाएगा तो मोटिवेटेड फील करेंगे, फिर अपने आप ही प्रोसेस में आएंगे. राइट. राइट. लेट हो जाएगा. राइट. राइट. तो जैसा बच्चे मतलब खुद समझ सके कि भाई मुझे पढ़ना है आगे, तो उसके लिए कुछ टेक्निक या कुछ ऐसा है? सो वेरी टाइम्स क्या होता है बच्चों को, एक तो वो उनको लड़का है तो उसको लगता है मुझे स्पोर्ट्स और खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है. आजकल उनको बच्चों को ये भी रहता है कि पढ़ाई करके हम क्या कर लेंगे, व्हाट इज़ इट, व्हाट द चाइल्ड थिंक्स अबाउट, वो क्या सोचता है. क्योंकि कई बार हमारे जो स्टेटमेंट्स बच्चे को जाते हैं ना कि पढ़ाई करके आप ये कर लोगे, पढ़ाई करके आप इंजीनियर बनोगे, या जिस तरह से हम पहले ही सुना करते थे. आजकल बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस भी दिख रहे होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में दिख रहे होते हैं ना. सो व्हाट इज़ इट, व्हाट द चाइल्ड इज़ थिंकिंग अबाउट, स्टडी से रिलेटेड वो क्या सोच रहा है. इज़ इट कहीं आप उसको याद दिला रहे हैं इसलिए, या बहुत छोटा है अभी इसलिए लग रहा है. क्योंकि बच्चे आगे चल के अपने आप पिकअप करते ही हैं, बिकॉज सिस्टर पढ़ रही है तो देर इज़ अ स्ट्रेस ऑलरेडी है. वो देख रहा है ना बहन तो पढ़ रही है इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ना है, और ये फियर पेरेंट्स को आ रहा है क्योंकि बहन पढ़ रही है. राइट. बट जस्ट रिलैक्स. बच्चे जैसे ही अपने आप स्टडीज़ में, जैसे ही 10th में आएंगे अपने आप पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो माहौल है घर में, बहन को देख रहे हैं पढ़ते हुए.
क्योंकि सो आप रिलैक्स रहिए, यू आर पासिंग योर फियर टू योर चाइल्ड, जस्ट रिलैक्स. हम लोगों ने ऑलरेडी लाइक उसको ये भी बोला है कि भाई तेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, यू कैन जस्ट गो. एक्चुअली वो स्पोर्ट्स में भी Right. हैवी कराटे का भी वो करता Right, है. right. अनफॉर्चुनेटली अभी उसका ये 10 तारीख को भी एक प्रैक्टिस में गया था, उसका बोन फ्रैक्चर हो गया. समहाउ ही वाज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द खेल महाकुंभ. तो वो उसमें भी हमने बोला कि भाई तू पढ़ाई में नहीं तो कोई बात नहीं, तो खेल में भी तू कर सकता है. So it is parents' anxiety pass on to children. So just relax and you can use these method. आप अपने आप को रिलैक्स रखिए. आपके बच्चे आपके जैसे ही बनने वाले हैं और पढ़ेंगे ही. बहन को देख रहे हैं पढ़ते, उन्हें पता है. ओनली थिंग इज बच्चों को स्पोर्ट्स में और इस समय खेलने दीजिए. और एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रूटीन एंड कंसिस्टेंसी. बस उनको आप रूटीन में डाल के रखिए कि इतना तो करना ही है, इसके बाद नहीं चलेगा, इतना तो पढ़ना ही है, इतने मार्क्स तो आपको कंप्लीट करो और देन डू दैट, धमाल करो, खेलने जाओ, वॉट एवर. बट दैट कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट आई डोंट अलाउ यू. सो आई विल नॉट गिव यू गैजेट, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो पार्टी अनलेस यू फिनिश दिस. सो दैट इज़ द ओनली थिंग. कंसिस्टेंसी रखिए, रूटीन रखिए. बच्चाज विल डू वॉट एवर यू आर गिविंग, प्रोवाइडिंग. और आप उनके साथ बातचीत करते रहिए, बताते रहिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ आर. पढ़ाई इसलिए नहीं करना है कि कैरियर है, पढ़ाई इसलिए करना है कि एजुकेशन, खुद को एजुकेट करना, क्योंकि पढ़ाई इतनी खूबसूरत है. हिस्ट्री, सिविक्स बच्चे बोलते हैं इट्स सो बोरिंग, क्या हम उसको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्यों नहीं देखते हैं. तो हमारा भी ये बहुत फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को इस तरफ अट्रैक्ट करें कि पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि एक अच्छा जॉब मिलना चाहिए. पढ़ाई इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतनी क्रिएटिव और इतना आपको हेल्प करती है लाइफ में. ये सब बातें भी हमें बच्चों के साथ करनी है ना, क्योंकि हम बच्चों को सिर्फ एक ही दिखा रहे होते हैं, पढ़ोगे तो जॉब मिलेगा, पढ़ोगे तो बिजनेस कर पाओगे, पढ़ोगे तो कुछ एक्स्ट्रा. पढ़ाई अपने आप में इतनी खूबसूरत ज्ञान है. इट्स अ नॉलेज. ज़िंदगी का ज्ञान आप पढ़ने से कर रहे हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ें हम बात कर सकते हैं बच्चों के साथ. हाँ जी. हेलो, या इट्स ओके. तो एक ऐसा है कि ये फियर की बात तो की हमने. अभी ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से CBSE में बच्चे होते हैं तो उनका 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक सब एग्ज़ाम है जी. JEE का जी. इंजीनियरिंग का, और वो मेडिकल वाले का भी है. तो अभी जो मतलब जो बच्चे को फियर नहीं है या है, लेकिन अभी जो लास्ट 2-4-10 दिन उनके पास पड़े हैं, उसमें आप कैसे, मतलब जिसने पढ़ा हो उसके लिए कुछ अलग तरह से वो तो अपने आप करेंगे ही, और थोड़ा बहुत आपने बताया, लेकिन जो नहीं पढ़ा है या जिसको ऐसा है कि आपने बताया ऐसा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, कि किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है. मैं सच में बताऊं तो इसमें हमारी एजुकेशन सिस्टम का बहुत सारा दोष है इसमें, क्योंकि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अभी आपको IT का बनना है तो इसमें आई एम मास्टर इन ऑल द डिसिप्लिन्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, क्वालिफाइड है एंड विथ रेप्यूटेड नंबर 1 कॉलेजेस. लेकिन ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है 11th में, इसको IT में, कंप्यूटर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ता ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, इन मैनी डिसिप्लिन्स ऑफ स्टडी ऑल्सो. तो ये इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो मतलब ये जो भी कम पड़ा है या जो भी, तो उसके 10 दिन के लिए आपके पास क्या कुछ स्ट्रेटेजी या टूल्स या कैसे करना है वो ज़रा बताइए. सो इम्पॉर्टेंट इज़ कि बच्चे ने अगर साल भर पढ़ा भी हुआ है और अगर आखिरी में नहीं पढ़ पाए हैं, तभी भी जो भी पढ़ा है वो इट्स देयर टू हेल्प, राइट. टेक्निकल चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर पूरे साल में भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, सो दे आर अवेयर ऑफ दैट. अगर मुझे लास्ट मोमेंट, लास्ट मंथ में भी पढ़ना है, तभी भी जितना इम्पॉर्टेंट है, इवन द टीचर्स उनको बहुत हेल्प करते हैं कि लास्ट मोमेंट में कैसे सिलेक्टिव स्टडीज़ की जाए या कैसे रिविजन पेपर्स में करेक्ट किए, तब भी बच्चे आराम से स्कोर कर लेते हैं. सो इट इज़ नॉट अ पॉइंट कि आखिरी मोमेंट में हम क्या पढ़े. हर बच्चा आखिरी के 2 महीने भी कॉन्सेंट्रेट करे, साल भर ना पढ़ा हो तो भी वो निकाल सकता है, और आखिरी के 15 दिन में भी. इम्पॉर्टेंट ये तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसको विल पावर होना चाहिए कि मुझे इतना कर ही लेना है, मैं कर सकता हूँ और मेरे पास प्लान होना चाहिए, और मेरे पास क्या दिन कम पड़ेंगे, इतना मेरे पास टाइम रहता है, रात है, दिन है, क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते हैं. सो इतने कम टाइम में भी इफ़ दे डिसाइड कि मुझे करना है तो दे विल बी एबल टू डू. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे रात दिन एक करते हैं एंड दे यूज़ देयर टाइम लाइक एनीथिंग. द हार्ड वर्क दे पुट इन, इट इज़ क्रेडिबल. और आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
इट्स टफ, बट बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे ये हैं. जो 10 दिन है उसके पास के 5 दिन है कि 3 दिन है, अब 5 और 3 दिन जो में भी- तुम्हें क्या लेकिन गाइड उसके लिए आपके पास कोई एसओएस टूल या टेक्निक या वही स्ट्रेटेजी already चार we पाँच have- दिन का already we हाँ, have वो तो दिया given है you. आपने, और फिर Right. भी जिसने नहीं नहीं, कुछ 3 पढ़ा दिन में तो उसके क्या लिए- कर पाएंगे सर. कुछ भी जो भी है वो करना है हमारे सो पास. यस, वही। आपने नोट डाउन किया है, सभी टूल्स मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं. डेफिनेटली बच्चास विल बी एबल टू डू इफ दे यूज दिस टूल, इट इज गोइंग टू हेल्प. और अदरवाइज इफ स्टिल देयर यू कैन कॉल अस. थैंक यू सो मच. एनीथिंग एल्स? Two questions. Ji. First of all, I'm here as an elder brother to Okay. a teenager kid who is majorly, in these exams, Okay. in this age group. One is, what do you think as a psychologist is the impact of all these successful celebrities? Highly, there are any, successful celebrities who will endorse kids to study. लोग यही बोलते हैं कि भाई पढ़ने से क्या होगा, मतलब दैट काइंड ऑफ बीइंग सक्सेसफुल पीपल ऑफन रिलेट इट विथ नॉट टू स्टडी. तो व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन दिस अल्फा जनरेशन व्हेन दे सी दिस कि सक्सेस तो आप बन सकते हो कुछ भी करके, तो ना पढ़ो तो भी सक्सेसफुल शाहरुख खान बना ना, नहीं पढ़ के भी, बट दैट डज नॉट मीन कि एज अ टीन आई शुड नॉट स्टडी. तो हाउ डू यू लुक एट दिस? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. कई बार क्या होता है कि यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स वेरी नाइस, बट रिजल्ट्स आर नॉट इन योर फेवर. Right. So as an elder brother, what should be 1, 2, 3 things which I should communicate with an alpha generation kid whose results is perhaps not in the favor और इतना नहीं आया जितना उसने सोचा था, तो मुझे उससे कैसे और क्या बात करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? Fine. Thank you for asking. You have 2 questions. आप क्या करते हैं? I'm a government officer. Okay. So आप जो अपनी पढ़ाई में कर पाए, आपने जो पढ़ाई की, are you happy with that? Okay. So क्या आपको लग रहा है वो रिपीट कर रहे हैं आप? In what क्या आप उसकी वजह से बहुत fearful है No, कि no, that no, same not thing at will all. happen? Not at all. But That is the reason. it could have been better. That's what Right, I'm right. So what the thing is, what I am telling is, see this, what I am, see communication is what? Communication is hardly 7% is the words, जी. right? बाकी 93% जो है वो it is about the body language and the way you speak. So if I am not happy with the job or with the things around me, so the same thing I am communicating to my child. Things are not happy because I am seeing my child is being motivated or driven towards the celebrities, right? That is not going to help, right? We fear about. So is there anything which हम उनको क्या ideal दे सकते हैं? Is there anything which they can switch to? कोई has switch कर सकते हैं? Either the elder brother और द वेरी नियर नेटिव, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा कर रहा है अपने जॉब में और हु इज डूइंग बिजनेस. कैन वी चेंज इट टू दैट? कैन वी शिफ्ट हिज फोकस टू दैट? कैन ही गेट मोटिवेटेड सीइंग हिज ओन ब्रदर? That is the thing we need to. Even children know that they can't be a celebrity. They can't be a Ambani or something. Because we see that reality. I say that alpha children, they are very smart because they have all information in their hands. They are more educated enough rather than we can say that they are very young enough. So we need to shift their focus. We need to actually communicate with them. हम उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, what do you want to be like one day? We are chartered accountant, she is a lawyer, and we are psychologists today. Right? Though it cannot be this profession is good or this is not. Right? Still we are working, we are happy with their profession. What is important is you love what you love. That is the thing. हम life purpose को ढूंढ रहे, goals को ढूंढ रहे हैं, and you can excel in everywhere. So why to decide and be fearful on that? I hope you are getting my answers. Yeah, very much. Thank you. And the next part, next Yes, what was that? Please repeat that. It was like कि अगर किसी का रिजल्ट फेवर में नहीं आता, जी. तो what as an elder brother or as a parent in general, what are the 2 or 3 things that I should say? Okay. लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, but what Right. is your angle on that? Right. So इसके लिए मुझे एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू याद आता है. अनुपम खेर जी का इंटरव्यू है वो.
अनुपम के मैं हमेशा लोगों से डिस्कस करती हूँ। अनुपम खेर जी के पिताजी ने जब वो 10वीं में फेल हुए थे, शायद 10वीं में ही थे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। सो आफ्टर फेलिंग दैट एग्ज़ाम उसके फादर उसको रेस्टोरेंट ले गए थे और वहाँ पे उन्होंने उसको ट्रीट दिया था, टू हैव अ चॉकलेट और टू हैव अ आइसक्रीम, बिकॉज यू फेल्ड। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट योर चाइल्ड, वो उन्होंने कहा भी बेटा आप ज़िंदगी भर इस फेलियर को फेलियर की तरह याद नहीं रखो, इसलिए आई एम किम फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके। हाउ वी सी इट, हाउ वी गेट, हम कैसे बाहर निकलते हैं, राइट? मेनी चार्टर्ड अकाउंट्स आर बिजनेसमैन, मेनी पीपल आर फेलियर्स, बट हाउ दे कम आउट, हाउ दे बाउंस, वो चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, नज़रिया क्या है हमारा लाइफ का, right? This is how I really feel like always tell everyone, see that example. वो इंटरव्यू में बता रहे हैं फेलियर पे क्या आप कर पाएंगे अपने बच्चों के साथ। हम फेल होने पे हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि इट्स जैसे आकाश गिर गया, टूट गया हो, लाइफ में हम चीज़ें ख़त्म हो गई हों। इट्स अ ट्रॉमा इन द फैमिली इफ समवन डजंट गेट एडमिशन समवेयर, सो विच इज़ नॉट ट्रू। लाइफ इतनी बुरी और इतनी गंदी नहीं हो सकती कि एक एग्ज़ाम कम हो गया या रिजल्ट ठीक से नहीं आया उसके लिए हम इतना ट्रॉमा फील कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली द चाइल्ड मे बी हैप्पी, इट्स ओके। ये बच्चों को इसको एक्सेप्ट करना इज़ ईजियर देन द एडल्ट्स। एडल्ट्स टेक इट वेरी बैडली, उनके लिए सेटल करना, क्योंकि दे आर सीइंग द ना, आप बाहर देख रहे हैं कि इट्स वेरी बहुत स्ट्रगल है। सेटल डाउन, टेक योर सेल्फ, calm yourself down. Your children are wonderful, they will do wonderful in your exams and they will excel whatever they learn. कुछ भी पढ़ेंगे, आप बस इतना ही ध्यान रखें वो आइडियल किसको चुन रहे हैं, क्या आइडियल है उनका, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। एंड गिव दैट मोटिवेशन, दैट इज इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you for very interactive and informative session. I hope parents and students also liked it. On behalf of AMA, I would like to thank first of all students and parents who have really taken out time to come over here and interact with the experts of the subjects as well as try to understand whatever material they have given to us. So I am really thankful to the parents and students. I am also thankful to Madam Kanare as well as Madam Mangrolia for sparing their time and coming to the AMA and give lot of knowledge which is otherwise not easily available with the examples also. So I am very much thankful to them as well as I am thankful to the all the staff of the AMA.